ଆପଣ ଯଦି NRTS 2026 ପାଇଁ କି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କାରଣ ଆଜିର ଏହି NRTS ମ୍ୟାରାଥନରେ ଆସୁଛି 30ଟି ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ସହିତ ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଆକ୍ୟୁରେସିକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେବ ଇଜି, କିଛି ଟ୍ରିକି, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଦେଖି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଟେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ରେଡ଼ି? ପେନ୍ ଓ ଖାତା ଧରନ୍ତୁ, ଟାଇମର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର NRTSର ମ୍ୟାରାଥନ୍ 2026। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି NRTSର ଆମେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହକୁ କେବଳ କାର୍ତୁଜ ସମସ୍ୟାର ଫଳ ବୋଲି କହିବା କାହିଁକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା କାର୍ତୁଜ ସମସ୍ୟା ଘଟିନଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର କୌଣସି ସାମାଜିକ କାରଣ ନଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମର ଏହି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପଢ଼ିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଭାରତରେ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଭାରତରୁ ସମ୍ପଦର ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭାରତରୁ ସମ୍ପଦର ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହ। ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଭାରତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶ ଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଉପନିବେଶ ଥିଲା ଭାରତରୁ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ହୀରା, ସୁନା, ମୋତି, ଖଣି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରକୁ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଲା ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଏବେ ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏକନାୟକତ୍ୱ, ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ରାଜତନ୍ତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ପରିଣାମ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମୁଖ ପରିମାଣ କ'ଣ? ପରିଣାମ ମାଟି କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ, ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି। ମାଟି କ୍ଷୟ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆନ୍ସର୍? ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ମାଟି କ୍ଷୟ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ। ଜଙ୍ଗଲଟା କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଗଛ ଅଛି, ଗଛଟା ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମାଟି କ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ରହିଛି, ଜୈବ ବିବିଧତା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ। ଏବେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅନିୟମିତତା ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କାହିଁକି? ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅନିୟମିତତା ଆପଣ ତ ଜାଣୁଥିବେ, କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜୁନ୍ରେ ଆସୁଛି, କେବେ ମେ'ରେ ଆସୁଛି, କେବେ ଜୁଲାଇରେ ଆସୁଛି, କେବେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ନହେଲେ କେବେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ସମୟ ହେଉଛି। ଏହା କୃଷି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା କୃଷି ବର୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କୃଷି କେବଳ ଶୀତରେ ହୁଏ, ବର୍ଷା କୃଷି ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଚାଷ କେବଳ ନଦୀ ଜଳରେ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟସରେ ରଖିବାକୁ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି NRTS ପାଇଁକି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା।
जदि कौनसी आईन संविधान विरोधी बोली अभियोग हुए तेबे यह परीक्षा करिवार अधिकार कहार निर्वाचन आयोग न्यायपालिका ग्रामसभा मंत्रिमंडल तेबे एठारे आमर कौन सठिक उत्तर हो एठारे आमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी न्यायपालिका माने आमर जदि कौ संविधान विरोधी बोली अभियोग हुए माने आमर जदि किसी आईन अच्छी संविधान गोटे आईन अच्छी सेटा यदि आमर संविधान विरोधी माने आमर संविधान जो प्रस्तावना अच्छी मुखबंध अच्छी तार यदि विरोधी हुए तार अभियोग हुए तेबे यह परीक्षा किए कर न्यायपालिका कर न्यायपालिका आमर कौन आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी सी कर एबे आमर चलतु 7 नंबर क्वेश्चन की जीवा भूगर्भर अत्यधिक जल व्यवहार संभाव्य परिणाम अत्यधिक व्यवहार संभाव्य परिणाम भूगर्भ जलर माने आमर जो ट्यूबवेल पानी कूओ पानी एगुड़ा सब आमर हूँ भूगर्भ जल आम जो अधिक व्यवहार होची से तार संभाव्य परिणाम कौन भूगर्भ स्तर कमिबा वर्षा स्वतः बढ़िबा माटी सब बळे उर्वर रहिबा नदीर पानी बढ़िबा तेबे एठारे हमर कौन सठिक उत्तर हो एठारे हमर सठिक उत्तर हमर इजिली एटा इजी क्वेश्चन टा अछि मु जेमिति कि कहितली स्टार्टिंग रे इजी क्वेश्चन अछि कि ट्रिकी क्वेश्चन अछि आ कि एमिति भी क्वेश्चन अछि जोटा भी अपन कंफ्यूज करिवो सेति पय एठी हमर ऑप्शन ए जो आमर करेक्ट आंसर कहीं आम जब भूगर्भर जल गुड़िक अत्यधिक व्यवहार करिबा ताले भूगर्भ जल स्तर कमिबो एटा गोटे निश्चित कथा एबे चलतु 8 नंबर क्वेश्चन की जीवा भारतीय हस्तशिल्प दुर्बल हेबार कारण कौन भारतीय हस्तशिल्प दुर्बल हेबार कारण कौन एठारे आमर ऑप्शन ए देला विदेशी यंत्र निर्मित वस्तुर प्रवेश हस्तशिल्पर चाहिदा वृद्धि कारीगर मानक आय वृद्धि कर संपूर्ण बंद करिबा तेबे एठी आमर भारतीय हस्तशिल्प दुर्बल हेबार कारण कौन देछि तेबे एठी आमर आंसर हबो कौन आंसर हबो एठी विदेशी यंत्र निर्मित वस्तुर प्रवेश आमर जितेबले इंग्लैंड रो उपनिवेश थिला भारत सेतेबेले विदेशी यंत्रपाति गुड़िक बिक्री करने बजार दरकार थिला आमर जो इंग्लैंड रे जेतेबेले अधिवासी थिले सेमानंकु तांकर जो चाहिदा मेंटिबा आमर शिल्प विप्लव प्रथम इंग्लैंड रे हिथिला इंग्लैंड रे जेतेबेले शिल्प विप्लव हैला यंत्र निर्मित वस्तु मध्य हैला माने तांको चाहिदा ठारू अधिक परिमाण रे वस्तु हैला सही वस्तु गुड़ी को तो नष्ट तो करें ना बहुत कष्ट कर बिक्री करने गोटे बजार दरकार है से बजार दरकार से बजार जो बजार आमर जो दरकार जो से मैंने आसिले कौटी भारत को निजर उपनिवेश कले और निजर यंत्र निर्मित वस्तु को प्रवेश कराइले एवं बिक्री कराइले तेणु भारतीय हस्तशिल्प दुर्बल है आमर भारतीय कुटीर शिल्प हेतु 1 नंबर थिला माने भारत आमर विश्व रे सर्वोत्तम थिला केतेटा अन्यतम थिला एगुडा सब थिला किंतु जेतले विदेशी यंत्र निर्मित वस्तुर प्रवेश हैला सेते बेले एगुडा सब दुर्बल हो गेला एबे हमर चलंतु 9 नंबर क्वेश्चन की जीवा 9 नंबर क्वेश्चन कोन देछि सर्वोत्तम विकास स्थायी विकासर सर्वोत्तम अर्थ कौन स्थायी विकासर सर्वोत्तम अर्थ आमर कौन देछि तबे एठी आमर ऑप्शन देला समस्त संपद शीघ्र व्यवहार करदेबा वर्तमान आवश्यकता सह भविष्य पीढ़ी आवश्यकता को मध्य सुरक्षित रखिबा केवल शिल्प वृद्धि करिबा कृषि बंद करिबा एठी आमर आंसर कौन हो एठी आमर आंसर हो वर्तमान आवश्यकता सह भविष्य पीढ़ी आवश्यकता को मध्य सुरक्षित रखिबा आमर एटा कौन कह जाए आमर एटा कह जाए धारणीय विकास आमर अष्टम श्रेणी भूगोल आम एटा पढ़ीचे एटा कह जाए धारणीय विकास जोटा कि आमर एबेकार जो संबल गुड़िक अच्छे आम सठिक भाव में व्यवहार करवा और आगामी पीढ़ी बंचे रखा आम कह जाए धारणीय विकासटा हूँ अस्थायी विकास जोटा कि ये आम क्वेश्चन देछि केउटी नवीकरण योग्य संपद एटा मु देखु यहाँ हूँ कोयला पेट्रोलियम सौरशक्ति प्राकृतिक गैस तेज ये नवीकरण योग्य माने जोटा को आम थे व्यवहार कर सारापर ता पुनर्भरण हो पार तेज ये पुनर्भरण कौटा हो पार ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर सूर्य शक्ति आम पुनर्भरण हो पार यही सूर्य शक्ति आम पुनर्भरण हो पार तेणु यहीटा होम नवीकरण योग्य संबल तेज आमर ये एसएससी माने सोशल साइंस रो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो क्वेश्चन थिला एवं पॉलिटिकल साइंस अर्थनैतिक विकास माने एगुड़ा जो आमर इकोनॉमिक्स रो जो क्वेश्चन गुड़िक थिला 10टा क्वेश्चन से गुड़िक सरी जाइए एवं आमर साइंस को क्वेश्चन आसला जनरल साइंस जीएससी को एवं आमर साइंस रो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा माने 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा वस्तुर वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड रु
30 मीटर प्रति सेकेंड को 5 सेकेंड रे बढ़िला ताहार त्वरण केते माने त्वरण माने आपण जानिथिबे त्वरण माने हला एक्सीलरेशन त्वरण माने कोन एक्सीलरेशन मु से पे आपन को फास्ट कहउथिले आपन खाता पे धरि बसंतु एगोडा जे फार्मूला अछि जोटा कि आपन टिपी रखंतु आपन एनआरटीएस परीक्षा बेलु आपन जेते बेले प्रिपरेशन करिवे रिवीजन करिवे आपन सेटा सहज हबो तेबे एठी हमर एई जो क्वेश्चन देला आर हमर गोटे फार्मूला अछि केमिति बाहरिबो त्वरण केमिति बाहरिबो हमर फर्स्ट आईडी देखंतु सेकंड आईडी देखंतु 10 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड यही जो 10 मीटर प्रति सेकंड रु 30 मीटर प्रति सेकंड को 5 सेकंड रे बढ़िला माने समय केते लागिला 5 सेकंड एडा अंतिम वेग माने 5 सेकंड रे बढ़िला टोटल केते कि 30 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग केते माने 10 मीटर प्रति सेकंड रु आरंभ होई कि 30 मीटर प्रति सेकंड पर्यंत 5 सेकंड रे बढ़िला एती कथा बुझा पड़िला एबे हमर देखंतु एहार फार्मूला हला प्रारंभिक वेग हमर एठी फार्मूला होची हमर अंतिम वेग जोटा अछि माने जो 30 मीटर प्रति सेकंड एडा हला हमर अंतिम वेग माइनस ए जो स्टार्टिंग वेगटा होची प्रारंभिक वेग एडा हला प्रारंभिक वेग हरण समय ए जो 5 सेकंड होची एडा होची हमर समय एति की जानिले माने एटा होची हमर फार्मूला आपण एठी लिखि परिबे अंतिम वेग पाई अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हरण समय एति कथा जानले तेबे हमर एठी अंतिम वेग होची 30 मीटर प्रति सेकंड ना अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक वेग हला 10 मीटर प्रति सेकंड हरण समय हला 5 सेकंड ताले 30 माइनस 10 हला हमर 20 हरण 5 हला 4 तेबे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होची हमर त्वरण जोटा कि हमर सठिक उत्तर हमर एठी ऑप्शन बी होची हमर सठिक उत्तर 4 मीटर 4 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर एबे एती कथा हमर 11 नंबर जे हमर सरीची एबे चलंतु 12 नंबर क्वेश्चन के जिबा 12 नंबर क्वेश्चन कोन देला 4 केजी बलर एक वस्तुर त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एहार ऊपर नेट बल केते 4 केजी बलर एक वस्तुर त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तार नेट बल केते एटा बाहर करिया बे सहज आर गोटे फार्मूला अछि बल गुणन एतिकी एटा मिसी भाई जीव हमर गुणन ए दीटा हमर गुणन हे गले हमर नेट बल बाहर जीव एति कथा आपण जानि गले माने एटा हबा हमर त्वरण एटा हला हमर बल माने बल गुणन त्वरण इज इक्वल टू नेट बल तबे एठी हमर बल हला 4 हमर एठी 4 देला बल एहा परे हमर एठी 3 देला त्वरण 4 गुणन 3 हे गला हमर 4 * 3 केते 12 माने 12 n माने 12 नेट बल हमर 12 n जोटा कि हमर होची आंसर माने ऑप्शन बी हमर हे जिवो एठी सठिक आंसर एबे एती कथा बुझा पड़िला एबे 13 नंबर एथि आपण मु जदी पढुची आपण किछि भी जदी न बुझी पारथुबे कि किछि डाउट थिबो आपण निर्भय भाबरे आपण जहा इच्छा आपण मते कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबे मु तापे आपण को पर्सनली कंसल्ट करबी एहा पर 13 नंबर क्वेश्चन की जिबा 13 नंबर क्वेश्चन देछि जणे व्यक्ति समतल दर्पण रु 2 मीटर दूर रे अछंती तांका प्रतिछबि व्यक्तिंकर मध्य दूरता केते एइटा होछि आपण प्रश्न हमर एठी दर्पण रो बहुत प्रश्न देइथे एडी पिला कोंती कंफ्यूज माने एइटा होछि कंफ्यूजन प्रश्न जोटे कि हमर एठी धर मु एठी नेली एठी हला दर्पण हमर एठी दर्पण लोकडी छिडाइछि एठी तार प्रतिछबि कोठी हबो एठी हबो ना नहीं एडी जो तार दूरटा हैला 2 एठी भी दूरता हैला 2 तबे क्वेश्चन कोन देछि 2 मीटर दूर रे अछन माने 2 मीटर दूर रे अछंती प्रतिछबि व्यक्ति मध्य रे माने ए प्रतिछबि आ ये होचंती व्यक्ति ये होची तांका प्रतिछबि माने आ भितरे दूरता केते टोटल दूरता केते ये हला 2 माने 2 और 2 मिसी के केते हबो 4 माने अंकर प्रतिछबि ओ से व्यक्ति और तांका प्रतिछबि भितरे दूरता केते दूरता हे जो हमर ऑप्शन सी 4 मीटर तबे हमर एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन सी 4 मीटर ए फार्मूला वाडा आपण निश्चय खाता रे लिखि रखंतु काइना एगुडी का आपण एताले एनआरटीएस रो रिवीजन करिवे सेताले आपण दरकार हबो शब्द रे कंपांक बढ़िले कोन बढ़े माने कंपांक माने हमर कोन कहंती शब्द रे हला कोन दे कहंती एम्प्लीट्यूड बढ़िले हमर कोन हुए कोन बढ़े ऑप्शन ए देला लाउडनेस
ऑप्शन ए देला लाउडनेस, ऑप्शन बी देला पिच, ऑप्शन सी देला एम्प्लीट्यूड, ऑप्शन डी देला बल। तेबे एठारे हमर ऑप्शन आंसर हो ऑप्शन ए लाउडनेस। एठी आपण गोटे कथा देखि नियंतु, फ्रिक्वेंसी जदि बढ़िला हमर पिच बढ़िबो, एम्प्लीट्यूड जदि बढ़िला हमर लाउडनेस बढ़िबो। तेबे एठी लाउडनेस हला हमर ध्वनि, पिच हला हमर पिच, हम जोटा ओडिया रे पिच ही को। यहाँ पर आमर चलतु 15 नंबर क्वेश्चन की जावा। 15 नंबर क्वेश्चन को देछि, गच्छ को अंधार रखी स्टार्च परीक्षा करा जाए कहीं? क्लोरोफिल बढ़ाइबा को, पूर्वर थिबा स्टार्च कमाइबा को, जल शोषण बंद करने को, मूल बढ़ाइबा को। तेबे एठारे हमर सठिक उत्तर कौन हो? एठारे हमर सठिक उत्तर हो पूर्वर थिबा स्टार्च को कमाइबा को। माने गच्छ जेतेबेले हमर खरा रे थाए सेतेबेले हमर स्टार्च बनाई थाए, अंगारकाम्ल व्यवहार करे स्टार्च बनाए, किंतु जेतेबेले सी तापर पुणी खरा जदि एकाधिक समय खरार बहुत समय जाए से स्टार्च बन चलती एत जिन सी रखिए कौटी। तेणु वैज्ञानिक मैंने जिते गछ को परीक्षा करती से गछ को अंधार रखती, जहाँफल सी जो खाद्य प्रस्तुत करुव तार स्टार्च गुड़िक कम एवं ताफल से सूर्य को गछ पुणी गले पुणी स्टार्च सृष्टि कर जहाँकि गोटे निरंतर श्रृंखल भाव में कार्य कर। एबे देखो 16 नंबर क्वेश्चन देला, लुहारे जंक धरिबाई आवश्यक कौन? केवल ऑक्सीजन, केवल जल, ऑक्सीजन और आर्द्रता, केवल नाइट्रोजन। यहाँ आप सहज प्रश्न जोटा कि आंसर हो ऑप्शन सी ऑक्सीजन और आर्द्रता। आमर जब वायु मॉइस्चर थी ऑक्सीजन थी माने अम्लजान थी ताहले आप लुहा जंक खाई यार आप परीक्षा नहीं पारे, किंतु परीक्षा करने बहुत टाइम लगे। ऑक्सीजन और आर्द्रता थी आमर लुहा जंक खाई। एबे चलतु आमर 17 नंबर क्वेश्चन के जीवा। क्षुद्रांतर झिल्लीर मुख्य कार्य तेबे एठारे आमर ऑप्शन देला पित्त उत्पादन, पोषक शोषण, खाद्य संरक्षण, रक्त पंप करवा। तेबे एठारे आमर आंसर हो पोषक शोषण। पोषक आमर जो अच्छे क्षुद्रांतर जो भिल्ली रे जो पोषक अच्छी भिल्ली ताऊ शोषण करे से पोषक, सेटा हूँ आमर पोषकर भिल्लीर कार्य क्षुद्रांतर जो भिल्ली अच्छी। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कौन देछि, रक्त रे प्लेटलेटर मुख्य कार्य कौन? प्लेटलेट आपण ना शुणुवे कि नहीं मुझे जानी, किंतु रक्त रे प्लेटलेट अच्छी जार कि गोटे निर्दिष्ट कार्य अच्छी क्वेश्चन दे देछि। ऑप्शन ए है अम्लजान परिवहन, ऑप्शन बी है रोग प्रतिरोध, ऑप्शन सी है जमाट बांधिबा, ऑप्शन डी है खाद्य हजम। तेबे एठारे आमर सठिक उत्तर कौन हो? एठारे आमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी रक्त जमाट बांधिबा। रक्त जमाट बांधिबा को आउ गोटे कथा मुझे कह दूसरी, रक्त जमाट बांधिबा को आमर दरकार विटामिन के, जोटी कि आमर रक्त जमाट बांधिबा को दरकार, एवं से विटामिन के टा आमर जाए प्लेटलेट को, प्लेटलेट रक्त जमाट बांधिबा को सहायता करे। सीरीज सर्किट रे दुईटी बल्ब थिले, गोटे बल्ब नष्ट हेले कौन हम? ताले अन्यटी अधिक जल हम, उभय बंद हे, केवल नष्ट बल्ब हे, नष्ट बल्ब बंद हे, बैटेरी अधिक शक्तिशाली हे। तेबे एठारे आमर आंसर हो उभय बंद हे। कहीं मुझे देखई दूसरी आप गोटे डायग्राम करके देखई दूसरी, धर एटी गोटे बॉल अच्छी, बॉल अच्छी, एटी गोटे बॉल अच्छी, एटी गोटे बॉल अच्छी, एटा एटी गोटे बैटेरी अच्छी, एटा हूँ तार प्लस, एटा हूँ तार माइनस, एटा हूँ तार प्लस, एटा हूँ तार माइनस। ताहले एठू आमर जीव प्लस रो गोटे सर्किट, ए बॉल को देगी पुणी ए बॉल को जीव, पुणी ए बॉल ये प्लस देथिबो, तापर एटी माइनस देथिबो, एटी प्लस देछि, एटी माइनस देथिबो। तेबे ए प्लस टा एठी जीव, तापर ए प्लस टा जाईकी पुणी ए बॉल रो प्लस को जीव, पुणी ए माइनस टा जीव ए माइनस रो बॉल को, पुणी ए तारटा जाईकी एठी जीव। ता एही भली आमर जदी हला ताहले आपण देखिबे सर्किटा पूरा गोटे प्लस माइनस रे रही, सर्किटा पूरा गोटे प्लस माइनस रे रही, माने एठी हमर गोटे बॉल रहिला, एठी गोटे बॉल रहिला, एटा प्लस अछि, एटा माइनस अछि, एठी गोटे बैटरी अछि, एठी हमर बॉल जलला, बॉल जलला, बॉल जलला, किंतु जेतेले एई बॉलटा फ्यूज हो जिवो, एठु हमर सर्किटा कटि जिवो, माने एठी जो हमर कनेक्शनटा जाईची ए बॉल को जो जाईची, ए बॉल को जो जाईची एटा कटि जिवो, ताले ए बॉलटा केमि जलिवो, ए बॉलटा केमि जलिवो, जलिवो नै ना। तेणु सीरीज जेतेले कनेक्शन हो जाए सेतेबेले जदि गोटे बॉल खराब हुए सेतेबेले सर्किटटा हमर कटि जाए, तेणु उभय बंद हो जाए। एबे चलंतु हमर नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा। जदि एक बस हठात रही जाए
ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? ଘର୍ଷଣ, ଜଡ଼ତ୍ୱ, ଚାପ, ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠାରେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ବି ଜଡ଼ତ୍ୱ। କାରଣ ଆମର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଅଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ଭୂମି ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ହଠାତ୍ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରକୁ ଆମେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ୁ। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆମର ଜିଏସସି ମାନେ ଆମର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦୁର୍ଜୟର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ଜୟ ମାନେ କ'ଣ? ସହଜରେ ଜିତି ହୁଏ, ଜିତିବା କଷ୍ଟକର, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ହାରେ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ ତେବେ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଜିତିବା କଷ୍ଟକର। ମାନେ ଦୁର୍ଜୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ସେଇଟା ହେଲା ଦୁର୍ଜୟ। ନିର୍ଭୀକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନିର୍ଭୀକ ମାନେ ସାହସୀ ମାନେ ଯିଏ ଆମର ସାହସୀ ମାନେ ନିର୍ଭୀକ, ଯିଏ ଭୀରୁ ନୁହଁ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େ, ଯିଏ କେଉଁଠି ହାର ମାନେ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ନିର୍ଭୀକ। ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଭୀରୁ। ଏଠି ଆମର ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ସାହସୀ ତ ନିର୍ଭୀକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାହସୀ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ବି ସେଇଆ। ନିଷ୍ଠୁର ତ ନିର୍ଭୀକର ବିପରୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଭୀରୁ। ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର ଯିବା। ରାଜପଥ କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜପଥ କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜପଥ ଅଛି ଏହାର ଆମେ ଆଗ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯିଏ ସିଏ ହେଲା ଆମର ରାଜପଥ। ତେବେ ଏହି ସମାସର ଉଦାହରଣ କେଉଁଠି? ଏହା କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ପୁଣି ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା, ପୁଣି ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଉଛି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଲଗାଯାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଆମର ରାଜପଥଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାହିଁକିନା ରାଜାମାନଙ୍କର ପଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଭକ୍ତି। ମାନଙ୍କରଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି। এই কথা ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏହି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ପାଇଲା। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ହେଲା ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଥ, ମାନେ ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରାଜପଥ। ଦଶାନନ କେଉଁ ସମାସ? ଦଶାନନ ହେଇଯିବ ଆମର କେଉଁ ସମାସ? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗୁଆ କାହିଁ କହିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦଶାନନ କେଉଁ ସମାସ? ଆଗ ମୁଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେସନଟା କହୁଛି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମାସ ତାର ସମାସ ବାକ୍ୟ ମାନେ ତାର ପୂର୍ବପଦ ବା ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ସମାସ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ, এইটা হচ্ছে পরপদ বা উত্তরপদ। কিন্তু আমার যে বহুব্রীহি সমাসরে কর্মধারী তৎপুরুষ অব্যয়ী ভাবে এগুড়িকরে ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପଦ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ପୂର୍ବପଦକୁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ପରପଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଅଛି ଏଇଟା ନା ନା ପୂର୍ବପଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ପରପଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଦଶାନନ ଦେଇଛି, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ହେଉଛି ଦଶାନନ। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦଶାନନ କ'ଣ? ଦଶାନନ ମାନେ ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆମେ ତାହାକୁ ଦଶାନନ କହିଦେବା? ନା, ଦଶାନନ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାବଣ। ରାବଣକୁ ଦଶାନନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ମହାଋଷି, ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷିର ସନ୍ଧି ରୂପ କ'ଣ? ମହର୍ଷି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମହର୍ଷି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାହିଁକିନା ଏଠି ମହାରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଆ। ତାପରେ ଏଠି ଋଷିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ରୁ। ତାପରେ ଆ ଆଉ ରୁ ମିଶିଲେ ଅର୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଅର୍ଟା ଆମର ପରପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ପରପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମର ମହର୍ଷି। ଏତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଏଥିରେ ଧୀରେ କେଉଁ ପଦ? ଧୀରେ ହେଉଛି ଆମର
क्रिया विशेषण माने से केमिति चलुची धीरे चलुची क्रियाटा माने कौन धीरे चलुची माने से क्रियाटार गुण को बुझाए सी हूँ विशेषण क्रिया विशेषण चलुची आमर क्रिया धीरे चलुची माने आमर क्रिया विशेषण जोटा कि आम इंग्लीश रे कहू एडवर्ब। एबे चलतु 27 नंबर क्वेश्चन के जिबा जदि तुमे पढ़िबो तुमे पास करिबो है केउ प्रकार वाक्य यह होउची हमर ऑप्शन सी जटिल वाक्य कहीं ना ये दुईटा वाक्य जोड़ा होगी अच्छी जदि तुमे पढ़िबो तुमे पास करिबो सेटा होउची हमर जटिल वाक्य। 28 नंबर क्वेश्चन देला सुना परी मुह यह केउ अलंकार अछि सुना परी मुह रे केउ अलंकार अछि रूपक उपमा अनुप्रास जमक तेबे एठारे हमर सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी उपमा। उपमा माने कौन उपमा माने तुलना करवा उपमा माने तुलना करवा माने ये सुना परी मुह माने आम सुना को तुलना सुना मुह को तुलना करछे सुना को आम साधारणतः कौन करूँ छोट छोट अल्प गुण विशिष्ट जिनस को बड़ अधिक गुण विशिष्ट जिनस सहित तुलना करूँ मुहटा हूँ सुना ठू कम तेणु आम मुह भली सुना को आम कहू माने मुहटी सुना परी माने सुना परी मुह सेटा हूँ आम उपमा। आखिरे धूली देवार भावार्थ कौन आखिरे धूली देवा माने भय देवा प्रतारणा देवा दुख देवा साहाय्य करवा एठारे आमर आंसर हो ऑप्शन बी प्रतारणा देवा। तेबे चलते आमर लास्ट क्वेश्चन की जीवा माँ पिला को डाकिले एठारे पिला को एठारे पिला को केउ कारक आमर कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक तापरे अपादान कारक ये आमर ऑप्शन देइछि तेबे एठारे आमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी कर्मकारक मु कर्मकारक माने कौन कहि दउची कर्मकारक हेउची आमर जो आमर जो कर्ता अछि कर्ता एठी के माँ माँ माने जे कर्तार जो प्रभावटा कर्ता जहाँ करे माने डाकिले डाकिले हेउची आमर क्रिया क्रियाटा आमर जहाँ उपरे प्रभावित हुए सी हेउची आमर कर्म तेबे एठी ए जो डाकिबाटा कहा उपरे प्रभावित होउची पिला को प्रभावित होउची ना तेणु पिलाटा होउची आमर एठी कर्मकारक तेणु एठी आमर 30 टी क्वेश्चन सरी जाईची एमिति आगु को एमिति वीडियो देखिबा को हेले आम चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब मध्य निश्चय करेंगे और आगु को एनआरटीएस कि पूरा लास्ट पर्यंत मुझे एमती क्वेश्चन नहीं आसबि लास्ट मिनिट टिप्स आनी मोटिवेशनल वीडियो आनी एवं ये वीडियो गुड़िक देखा हेले नोटिफिकेशन ऑन करदे तेज आज भिडियो को ये शेष करुच्ची धन्यवाद।